Now we are starting AC circuits. Clear? In AC circuit, we will discuss purely resistive यानी कि R only, purely inductive यानी कि L only, purely capacitive C only. इसी तरह से RL circuit, clear? It will be inductive circuit. RC, it will be capacitive circuit. LC circuit, either it will be purely inductive or purely capacitive, and then in last we will discuss the RLC circuit. Clear? Always remember, when we say it is the purely inductive, that means keval L is connected, only L is connected in the circuit. If we say purely capacitive, only C is connected in the circuit. If we say the circuit is inductive, that means it is the RL circuit. When we say it is the capacitive circuit, that means it is the RC circuit. Clear? तो हमारे पास ये 7 circuits हैं. In this lecture, we will discuss only the pure R, pure L and pure C. Clear? Because these are the basics of the AC circuit. Clear? Before starting the AC circuit, we will discuss few terms. Clear? That is impedance. Clear? What is the impedance? It is the net resistance offered by an AC circuit. क्या होता है? It is the net resistance offered by an AC circuit. It is denoted by capital Z. Impedance को हम कैसे represent करते हैं? It is represented by capital Z and the unit is ohm. Clear? Always remember the impedance Z. It is the V maximum upon I maximum, V RMS upon I RMS और the V average upon I average. Clear? हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि वोल्टेज और करंट या तो हम दोनों मैक्सिमम लेंगे या दोनों आरएमएस लेंगे या दोनों एवरेज लेंगे. ऐसा नहीं करना है कि इंपीडेंस निकालते हुए आपने वोल्टेज को मैक्सिमम ले लिया और करंट को आरएमएस ले लिया. क्लियर? बेसिकली अगर आप देखें Z that is equal to the V naught upon I naught. What is the VRMS? V naught upon root 2 upon I naught upon root 2. तो ये भी क्या हुआ? V naught upon I naught हुआ. और the V average that is the 2 V naught upon pi, I average 2 I naught upon pi. Again this will be the V naught upon I naught. Clear? तो आप क्या कहेंगे? The impedance Z, it is the V naught upon I naught, V RMS upon I RMS, V average and upon I average. Clear? उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पावर फैक्टर. क्लियर? पावर फैक्टर का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी तो केवल आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर. इट इज द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. क्लियर? वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. इट इज ऑलवेज गिवन बाय द phi. Clear? Then what is the power factor? That is equal to the cos phi. Clear? In term of resistance and impedance. Clear? In AC circuit, R is also in picture, Z is also in picture. That means the power factor, it is simply the ratio of R and Z. Clear? That is, you can say, what is the cos phi? That is equal to the R upon Z. Clear? एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इफ करंट इज लैगिंग, पावर फैक्टर इज लैगिंग. पावर फैक्टर इज लैगिंग. अगर करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर कैसा होता है? लैगिंग होता है. और अगर करंट जो है वोल्टेज से लीड करता है यानी कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, द पावर फैक्टर इज लीडिंग. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये V वेक्टर है, ये I वेक्टर है. अब यहां पर हमें पता कैसे चल रहा है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? तो हम V और I का जो वेक्टर पेयर है इसको हम कैसे, एक बार और देखते हैं कि हाउ यू विल सी द पावर फैक्टर इज लीडिंग और पावर फैक्टर इज लैगिंग. यहां पर ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज है, ये करंट है,
इनके बीच में एंगल कितना है फाई, यहां पर ये आई है और ये बी है, यहां पर एंगल कितना है फाई। अब मैंने क्या करा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, जैसे हम प्रोटेक्टर में देखते हैं। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करंट क्या कर रही है, करंट लीड कर रही है, ठीक है। तो पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग। तो हमने क्या कहा, पावर फैक्टर इज लीडिंग एज करंट लीडिंग द वोल्टेज। क्लियर। यहां पर जब हमने एंटी क्लॉकवाइज स्फीयर को रोटेट किया तो क्या हो रहा है, करंट इज लैगिंग, दैट मींस द पावर फैक्टर इज लैगिंग। क्लियर, एज करंट इज लैगिंग द वोल्टेज। क्लियर। If phi is equal to 0, cos phi is equal to 1. If phi is equal to 90 degree, then cos phi is equal to 0. Clear? तो phi बराबर 0 डिग्री कब होगा, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा। Clear? And the phi is equal to 90 degree. Cos phi is equal to 0 when it is purely reactive. Clear? What is the meaning of the purely reactive? That is, either it will be purely inductive और प्योरली कैपेसिटिव। क्लियर। तो आपने देखा जो पावर फैक्टर है इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 0 and 1। क्लियर। इफ द वोल्टेज, इफ द पावर फैक्टर वैल्यू लाई इन बिटवीन 0 and 1, फॉर एग्जांपल द पावर फैक्टर इज 0.8, क्लियर, दैट मींस इट इज इनकम्प्लीट। ये क्या चीज है बेटे, ये इनकम्प्लीट है। Clear? That means if the power factor is 0.8, either it will be lagging, clear? Either lagging or it will be leading, clear? और lagging कब करेगा, जब करंट लैग कर रही होगी वोल्टेज को, और लीडिंग कब करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा, जब करंट वोल्टेज को लीड करेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम शुरू करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या शुरू कर रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ध्यान से देखें, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर, दैट इज द आर ओनली। इसे हमने क्या कहा, दैट इज द आर ओनली। क्लियर, ध्यान से देखिए, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर हमने एक एसी सोर्स लगा रखा है। क्लियर, दैट इज द V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, से दिस इज द I। क्लियर, नाउ व्हाट इज द I, दैट इज इक्वल टू द V अपॉन R। क्लियर, तो V दैट इज इक्वल टू द V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। क्लियर, then I, it is equal to the V naught upon R into sin omega t। और ये जो V naught upon R है, ये क्या चीज है, this is the I naught। Clear? Then what is the I, that is equal to the I naught sin omega t। कितना आ गया, I is equal to I naught sin omega t। Clear? ध्यान से देखिए, say this is the omega t। Clear? This is the omega t। Clear? Now this is the voltage। यहां पर भी क्या था, V is equal to V naught sin omega t। यहां पर भी कितना है, I is equal to I naught sin omega t। That means this is the I। Clear? तो पहली चीज क्या निकली कि in pure R V and I are in same phase, are in same phase, that is phi is equal to 0। Clear? और सेकंड क्या निकला बेटा, what is the power factor, that is the cos phi, that is the cos 0, that is equal to 1। Clear? अब दोबारा से देखिए, what is the I naught, that is equal to the V naught upon R, or you can say V naught upon I naught, that is equal to R। और ये V naught upon I naught किसके बराबर होता है, Z के बराबर। क्लियर, यानी कि Z इज इक्वल टू R। क्लियर, तो इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इंपीडेंस इट इज सेम एज द रेजिस्टेंस। और अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि पावर फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस R अपॉन Z।
तो R अपॉन R दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? ध्यान से देखिए, दिस इज द वोल्टेज, मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द वोल्टेज, क्लियर, 0, दिस इज द पाई, दिस इज द 2 पाई। अब जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो क्या होगा? इट विल गो टू द सेम टाइम एंड इट विल बी लाइक दिस। ध्यान से देखिए कि वोल्टेज और करंट एक साथ क्या हो रहा है? 0 पर आ रही है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, और फिर नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर 0। क्लियर? अब ध्यान से देखें, सपोज हम पावर की बात करते हैं। व्हाट इज द पावर? दैट इज इक्वल टू VI। क्लियर? पावर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द VI। क्लियर? यहां पर V भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है, तो पावर भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द पॉजिटिव। यहां पर वोल्टेज नेगेटिव है, करंट नेगेटिव है, जब दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द एवरेज पावर। ध्यान से देखिए, P दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन T, 0 टू T। क्लियर? VI इंटू VI डी ओमेगा टी। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द V? दैट इज इक्वल टू द V नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो मैंने क्या करा, यहां पर थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा टी। देन P दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन पाई, 0 टू पाई। क्लियर? व्हाट इज द V? दैट इज द V नॉट साइन थीटा इंटू I नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? सिर्फ हमने क्या करा है, ये जो ओमेगा टी था इसको रिप्लेस कर दिया है थीटा से। क्लियर? जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2। क्लियर? देन व्हाट इज द P? दैट इज इक्वल टू द V नॉट बाई रूट 2 into I naught by root 2. Clear? Or you can say P that is equal to the VRMS into IRMS. ठीक है? तो जो पावर है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ VRMS IRMS. क्लियर? जब हम सर्किट देखेंगे कि इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, तब आप देखना कि वहां पर जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? दैट इज द VRMS IRMS cos phi। क्लियर? यहां पर phi बराबर कितना है? 0, तो cos 0 कितना हुआ? 1, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? VRMS IRMS। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ध्यान से देखिए, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव। प्योरली इंडक्टिव का क्या मतलब है बच्चों? दैट इज द L ओनली, L ओनली। ध्यान से देखिए, ये इंडक्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना? दिस इज द L और यूनिट क्या होगी इसकी? हेनरी। क्लियर? यहां पर हमने एक AC सोर्स लगाया, दैट इज द V, it is equal to the V naught sin omega t। क्लियर? दिस इज द I। क्लियर? तो L क्या है? हेनरी में है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द V? दैट इज इक्वल टू द L इंटू DI बाई dt। V किसके बराबर है? L DI बाई dt। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तब यहां पर देखिए, व्हाट इज द DI? दैट इज इक्वल टू द V अपॉन L इंटू dt। क्लियर? एंड व्हाट इज द V? बोलिए, DI
v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। क्लियर। अब I निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो I इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इंटीग्रेट v नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी, दैट इज द I इज इक्वल टू v नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल, और ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर। यहां पर देखिए जो वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहां पर हमें इस कोसाइन को भी क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट विल बी I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये वैल्यू आ गई ना कि I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। व्हाट इज दिस, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, बोलिए। दिस इज द मैक्सिमम करंट I नॉट, देन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर। ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट इज द I नॉट, दैट इज द V नॉट अपॉन ओमेगा एल। क्लियर। तो V नॉट अपॉन I नॉट, दैट इज इक्वल टू द ओमेगा एल। क्लियर। दैट इज इक्वल टू द 2 पाई FL, दैट इज इक्वल टू द XL। क्लियर। तो ये जो XL है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द Z, बिकॉज द रेशियो ऑफ द V नॉट एंड I नॉट ये कितना होता है, Z। तो XL इज इक्वल टू कितना आ गया, Z आ गया। समझ में आ रहा है। तो Z दैट इज द XL, और ये जो XL है इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द ओमिक वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस। क्लियर। इट इज द ओमिक वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस। क्लियर। और यू कैन से इट इज द ओमिक वैल्यू ऑफ द हेनरी। क्लियर। तो XL बराबर Z, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई FL, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, दैट इज द ओम। क्लियर। तो XL दैट इज इक्वल टू द 2 पाई FL। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, सपोज दिस इज द V। क्लियर। दिस इज द V, बहुत ध्यान से देखें। दिस इज द 0, this is the pi by 2. What is this? This is the pi. What is this? This is the 3 pi by 2 and this is the 2 pi. अब देखिए करंट कितने से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से। क्लियर। दैट मीन्स द वेवफॉर्म विल स्टार्ट लाइक दिस, 0, ठीक है ना, बाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ध्यान से देखें आप लोग, क्लियर, इट इज लाइक दिस। ठीक है। यानी कि मैं ये मैक्सिमम वैल्यू देख लेता हूं और यहां पर मैंने ये मैक्सिमम वैल्यू देखी। क्लियर। से द करंट इज लाइक दिस, करंट इज लाइक दिस, दिस इज द I एंड इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द V एंड दिस इज द I। अब ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो पावर कैसी हो जाएगी, पावर विल बी पॉजिटिव, इट विल बी लाइक दिस। क्लियर। यहां पर देखिए करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज कैसी है, नेगेटिव, यानी कि इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, तो पावर कैसी हुई, इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर। और यहां पर क्या हो रहा है बताइए, कि ये जो वेव फॉर्म है वोल्टेज इस तरीके से जाएगी, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है और ये पावर है।
क्लियर? ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट इज द P? दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन T 0 टू T. क्लियर? 1 अपॉन T 0 टू T. क्लियर? दैट इज द VI इंटू dt. क्लियर? यहां पर टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई. तो P दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई, दैट इज द V नॉट sin omega t into I naught sin omega t into dt. Clear? If you will solve this simple integration, you will get what is the P? That is equal to 0. Clear? यानी कि in purely inductive circuit, clear? What is the power consumed? It is 0. Clear? याद होगा आपको, हमने पहले ही बताया था कि जो इंडक्टेंस और कैपेसिटर हैं, ये कैसे एलिमेंट हैं? दीज आर द पैसिव एलिमेंट. और पैसिव एलिमेंट कब थे? या तो ये एनर्जी को क्या करें? स्टोर करें, या एनर्जी वेस्ट करें. जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता था? ये कंज्यूम कर रहा था. क्लियर? तो यहां पर पावर 0 है, लेकिन एनर्जी क्या है? एनर्जी ये स्टोर कर रहा है. क्लियर? तो यहां पर एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है. क्लियर? तो व्हाट इज द पावर? इट इज इक्वल टू 0. क्लियर? तो आपने प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या देखा? बताइए. पहली चीज, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2. सेकंड, व्हाट इज द Z? इट इज इक्वल टू द XL, दैट इज द ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू द 2 पाई FL. इट इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द पावर फैक्टर? बताइए. पावर फैक्टर दैट इज द cos phi, और phi कितना था? पाई बाय 2. तो cos पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर? और दूसरा क्या फॉर्मूला था? पावर फैक्टर R अपॉन Z. अब R क्या है? 0. Z कितना है? XL. तो पावर फैक्टर कितना आ गया? 0 आ गया. ठीक है ना? तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट समझ में आ रहा है. नाउ वी विल स्टार्ट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्योरली इंडक्टिव सर्किट. प्योरली इंडक्टिव सर्किट की जगह अब हम लेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि हमने क्या करा है भाई? C ओनली. अब क्या चीज है? C ओनली. बहुत ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर है. क्लियर? यहां पर हमने एक AC सोर्स लगाया, दैट इज द V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, एंड दिस इज द C and this is the I. Clear? What is the unit of the C? This is the farad. Clear? अब ध्यान से देखिए, what is the I? It is simply the rate of flow of charge. Clear? तो I that is equal to the dq by dt. और क्या कह सकते हो? d upon dt. What is the q? That is equal to cv. Clear? Or you can say I that is equal to the d अपॉन dt. ठीक है? C और V की जगह क्या लिखेंगे? V नॉट साइन ओमेगा t. क्या लिखा आपने? C V नॉट साइन ओमेगा t. क्लियर? और यू कैन से I that is equal to the C into V नॉट into omega cos omega t. क्लियर? और यू कैन से I that is equal to the V नॉट, समझ में आ रहा है, इंटू ओमेगा इंटू C दैट इज द साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. क्लियर? दिस V नॉट ओमेगा C, ये क्या है बच्चों? दैट इज द I नॉट. क्लियर? तो I कितना हुआ? I इज इक्वल टू I नॉट. ठीक है? साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. अब ध्यान से देखिए, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. ध्यान से देखो बच्चों, say this is the omega t and what is it? This is the V. Sin omega t plus pi by 2,
जब प्लस है तो एंगल इस तरीके से चलेगा, दैट मीन्स दिस इज द आई, और ये एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो क्या हो रहा है, आई लीड्स द वी, आई लीड्स द वी बाय पाई बाय 2 एंगल। क्लियर? तो आपने देखा इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। क्लियर? और यू कैन से व्हाट इज द फाई, फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज इक्वल टू द पाई बाय 2, और यू कैन से दिस इज द 90 डिग्री। क्लियर? एक बार और देखिए, व्हाट इज द आई नॉट, दैट इज इक्वल टू द वी नॉट ओमेगा सी। क्लियर? और यू कैन से वी नॉट अपॉन आई नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है? वी नॉट अपॉन आई नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता है, जेड के बराबर। क्लियर? तो जेड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर? और यू कैन से व्हाट इज द जेड, दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज गिवन बाय द XC, that is the capacitive reactance. What is the XC? It is the capacitive reactance. अब देखिए जो C की यूनिट है वो क्या था, फेरेड। XC की यूनिट क्या है, ओम। तो XC क्या है, इट इज द ओमिक वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है? ये ओमिक वैल्यू है किसकी, कैपेसिटेंस की, यानी कि हमें C फेरेड में मिला और XC किस में मिल रहा है, ओम में मिल रहा है। ठीक है? ध्यान से देखिए, सिमिलरली इट विल बी लाइक दिस। ठीक है? यहां पर ये वोल्टेज है हमारे पास, दिस इज द वोल्टेज। क्लियर? 0, दिस इज द पाई बाय 2, दिस इज द पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और ये कितना है 2 पाई। क्लियर? अब ध्यान से देखना बच्चों कि जो आई है वो क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, यानी कि पहले से चल रहा है। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे कि जो करंट है वो किस तरीके से चलेगी, से इट इज स्टार्टिंग, ये पाई बाय 2 है, इधर देखिए। ठीक है ना? तो 0, क्लियर, यहां से शुरू हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, फिर ये इधर जाएगा बेटे, फिर ये इस तरीके से आएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से जो है ये मूव करता चला जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख लीजिए एक बार और ध्यान से देखिए, पाई बाय 2 है, अब 0 टू पाई बाय 2 यहां से शुरू हुआ, ये पाई बाय 2, तो ये पाई हो गया ना पूरा का पूरा, ये कितना हुआ, ये पाई हुआ। क्लियर? यहां पर क्या होगा, ये पाई होगा पूरा का पूरा, ये पाई का आ गया नहीं आ गया, तो कितना आ रहा है, ये वैल्यू इधर आया बेटे, और इसी तरीके से ये यहां से जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और फिर इस तरीके से चलेगा और ये आ जाएगा, दिस इज द आई। क्लियर? तो ये वोल्टेज है, और ये क्या चीज है बेटे, ये वोल्टेज था, ये क्या था, करंट। क्लियर? तो जब करंट लीड कर रहा है, जो क्वांटिटी लीड करती है वो पहले से शुरू होती है। जब आपने देखा कि प्योरली इंडक्टिव की बात कर रहे थे तो वहां पर करंट क्या कर रहा था, 90 डिग्री से लैग कर रहा था। ठीक है? तो 90 डिग्री से लैग कर रहा था, तो वेवफॉर्म कहां से शुरू हुआ था बेटे, ये यहां से शुरू हुआ था। ठीक है? तो वोल्टेज और करंट, और यहां पर भी आप देखेंगे कि P बराबर 1/2 पाई। क्लियर? 0 टू 2 पाई, समझ में आ रहा है, दैट इज द VI dt। ठीक है? और यहां पर भी वैल्यू जो है इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पर भी आप देखेंगे कि पावर इट इज 0। क्लियर? तो इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रिमेंबर व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, 0। क्लियर? तो आप ये समझिए कि जो कैपेसिटर है इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है। क्लियर? दैट इज द व्हाट इज द एनर्जी, दैट इज इक्वल टू द हाफ CV², लेकिन जो पावर कंज्यूम्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो बच्चों, एक छोटा सा एक सवाल देखिए,
ध्यान से देखें कि सपोज दिस इज द AC सोर्स, क्लियर, एंड दिस इज द V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, क्लियर। यहां पर पहले रेजिस्टेंस लगा हुआ है, से दिस इज द R, क्लियर। यहां पर जो करंट है IR है, क्लियर, से दिस इज द L। यहां पर क्या लगाया हमने, एक प्योर इंडक्टेंस लगा दिया, दिस इज द L, और एक प्योर कैपेसिटर लगा दिया, प्योर कैपेसिटर लगा दिया L, एंड दिस इज द C, दिस इज द IL, एंड दिस इज द IC, एंड व्हाट इज दिस इज द I, ठीक है। अब हमें IR की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, IR। अब देखिए व्हाट इज द IR that is equal to V upon R, clear, IR that is equal to V upon R, that is the V0 upon R sin omega t, clear। what is the IL, that is the V upon, कितना हो जाएगा, अगर L इंडक्टेंस है तो ओमिक वैल्यू क्या होगी बेटे, XL, that is the V upon XL, clear। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, V upon XL, that is the V0 upon XL sin omega t minus pi by 2, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर हमने sin ओमेगा t के साथ कुछ नहीं लिखा था, यानी कि सेम फेज में थे। यहां पर क्या हो रहा है, करंट लैग कर रही है, कितने एंगल से, pi by 2 से। तो IL that is equal to V upon XL, that is the V0 upon XL sin omega t minus pi by 2, and what is the value of the IC, बताइए कितना होगा, IC that is equal to the V upon XC, clear, that is equal to the V0 upon XC। अब यहां पर करंट क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, तो कितना हो जाएगा, that is the sin omega t plus pi by 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए sin ओमेगा t है, यहां पर कितना है, ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 है, और ये ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, सपोज R इज इक्वल टू 10, क्लियर, L इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू, से दिस इज द 10 ohm, एंड व्हाट इज द XC, से दिस इज द 10 ohm, क्लियर, एंड द V that is equal to the 100 sin 3140, क्लियर। अब हमें IR की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द IR, दैट इज द V अपॉन R, तो V0 अपॉन R, R की वैल्यू कितनी है, 10, तो कितना हो जाएगा, दैट इज द 10 sin 3140, क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द IL, बताइए, V अपॉन XL, V0 अपॉन XL, V0 कितना है 100, XL कितना दिया है 10, that is equal to the 10 sin 3140, बस फर्क कितना आया, यहां पर माइनस पाई बाई 2 आ गया, क्लियर। इसी तरह से जो IC है वो कितना हो जाएगा, that is the 10 sin 3140 प्लस पाई बाई 2, बात क्लियर है। तो IR आ गया बेटा, ये IL आ गया, और ये कितना आ गया, ये IC आ गया, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द I that is equal to the IR plus IL plus IC, तो हम क्या करेंगे इसको, या तो हम प्लॉट करें, ठीक है, प्लॉट करके भी वैल्यू आ सकती है। देखिए किस तरीके से कि रेफरेंस वैल्यू कितनी है 3140, क्लियर, तो ये कितना हुआ, ये 3140 हो गया, क्लियर। और वैसे देखिए IL 10 sin 3140 माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, तो ये कितना है, ये IL है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द IR, क्लियर, और ये क्या है भाई, दिस इज द IC, ठीक है। IR की वैल्यू कितनी है 10, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, IL बराबर ये 10 है और ये भी 10 है, तो 10 और 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो IR बराबर कितना आ गया, दैट इज द IR, यानी कि नेट करंट I बराबर कितना है, IR दैट इज इक्वल टू द
10 sin 3140। ठीक है, अब देखिए अपना एक तरीका और लगाते हैं। कौन सा वाला? कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा वाला। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द IR? बोलिए, दैट इज इक्वल टू 10। ये 10 है हमारे पास, 10। ये एंगल कितना है? +0। ये तो हुआ, तो कितना आ रहा है? 10 cos 0 प्लस कितना आ गया? 10 sin 0। क्लियर? ठीक है, व्हाट इज द IL? दैट इज इक्वल टू द 10 cos π/2। 10 cos π/2 माइनस कितना हो जाएगा? बोलिए, 10 sin π/2। क्लियर? व्हाट इज द IC? दैट इज इक्वल टू द 10 cos π/2 प्लस 10 sin π/2। ठीक है, तो 10 sin π/2 प्लस 10 sin π/2 कट गया। ये कितना है? 0। cos 90 कितना होता है? 0। ये भी कितना है? 0। और ये भी 0 है, तो कितना आ गया बेटे? IR दैट इज इक्वल टू द 10। क्लियर? तो IR प्लस IL प्लस IC बराबर कितना आ रहा है? 10। और कैसे लिखेंगे इक्वेशन में? दैट इज द I, इट इज इक्वल टू द 10 sin 3140। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा? प्योर L, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटर। क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can email me or you can write.